क्वेश्चन 8 जांच करो। जांच करो मतलब कि तुसी कोई जसूस बन गए कि तुसी कोई जांच करनी है। वेखते हैं की हो गया 7 प्लस 3x कॉमा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 7x दा एक गुणनखंड है या नहीं। चेक वेदर सेवन प्लस 3x कॉमा 3x स्क्वायर प्लस 7x check whether 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 7 plus 3x ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦਿੱਤਾ ਹੈ 8 किस तरह बन सकता है 2 गुणा 4 बराबर 8 आ जाएगा 1 गुणा 8 बराबर 8 आ जाएगा साडे को ये तो केस नहीं ना साडे को ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, 1, 2, 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 + 3x ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 8 = 1 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 4 4 ਦੂਣੀ 8 ਏਕਮ 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 + 3x ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ है कि आउंदा है कि नहीं आउंदा। सोल्यूशन की आउंदा साडे को 3x स्क्वायर प्लस 7x। ध्यान नाल समझना ਅਸੀਂ ਦੋ ढंग दे नाल क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहले इस दे विचों कॉमन देखो की आंदा है ਸਾਂਝਾ। कॉमन ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਧਰ 3 ਪਿਆ ਹੈ ਇਧਰ 7 ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਜਾਂ 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। इधर x स्क्वायर है इधर की है x कल्ला दिता हुआ है ਇਹਦਾ मतलब x ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਘਾਤ 1 ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ ਬਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ x 2 ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 1x ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 1x ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 1x ਸੀ ਬਾਹਰ लिखा गया 7 ये आ गया साडे को। हुण देखो साडे को की बन गया 3x + 7 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ को बन ਜਾਂਦਾ है ना इस वाले साडे को ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 + 3x ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਲਈ 7 + 3x 3x स्क्वायर 7x ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ है। देखो ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੋਂ x ਕਾਮਨ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x + 7 ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। दूसरा मैथड की साडे को दिता होया 7 + 3x इस नूं बराबर 0 कर लो मतलब जिहड़ा फैक्टर असीं लभना है ठीक है उस नूं असीं बराबर 0 कीता 3x बराबर आ गया साडे को -7 ठीक है ना 3x इधर साइड ते आ गया साडे को x7 असीं 0 दी साइड लै गए तो साडे को प्लस सी माइनस हो गया जाके x फाइंड करते साडे हो गया -7/3 दोवें फैक्टर गुणा विच पए ने जिहड़ी चीज़ नंबर गुणा च पिया x असीं फाइंड करना -7/3 साडे को आ जाएगा। ਹੁਣ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ 7 ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 0 ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ x ਆ ਗਿਆ -7/3। ਹੁਣ ਇਹ -7/3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ 3x ਸਕੁਅਰ + 7x ਇੱਥੇ ਭਰਦੇ ਅਸੀਂ 3 -7/3 ਦਾ ਵਰਗ + 7 -7/3 देखो साडे को गया 3 माइनस का वर्ग किया प्लस आ जाएगा ना साडे को ये आ गया साडे को 7 7
49 3 तीए 9 प्लस 7 7 49 बटा 3 ये साडे को आ गया इत्थे माइनस दे विच 3 तीए 9 कट्टे गए साडे को आ गया 49 बटा 3 ते इस साइड ते साडे को प्लस माइनस अंदर पै जी ब्रैकेट दे ब्रैकेट हटाई साडे को आ गया माइनस 49 बटा 3 हुण देखो एक साडे को प्लस च आ गया एक माइनस 49 चों 49 माइनस किते 0 3 चों 3 माइनस किते 0 एक सिंपल कहना होवे एक फैक्टर प्लस दा एक माइनस दा दोवें कट्टे गए साडे को की बन गया 0 इस तरह साडे को 0 आ गया ना इसलिए जो 0 आ गया साडे को तो उस दा गुणनखंड है मतलब कि ए इहदी सिफर भी होवेगी ते ए जेड़ा है साडे को पॉलीनोमियल सी इस दा गुणनखंड जेड़ा वो भी होवेगा तुसीं देखिया कि असीं दो मैथड जेडे कीते हैं एक मैथड असीं ऊपर किया है एक नीचे किया है सीधा कॉमन कटिया फैक्टर पता लग गया या फिर उतो वैल्यू कढ लो एक्स की उसनू पुट कर दो तुसीं तां भी जेड़ा कि अपना फैक्टर जेड़ा दस सकदे हो सो दो मैथड ने साडे कोल जेड़ा तुहानू वधिया लगे तुसीं उस ते अपना हाथ जेड़ा आ टिका लेना है अच्छी तरह दे नाल मतलब कि अपना जेड़ा हाथ टिकाउण दा मतलब कि लाइक दिस इस तरह हाथ नहीं टिका लेना बल्कि अपने माइंड दे नाल सेट कर लेना है ते तुसीं उस मैथड नू यूज कर सको फिर आंदा क्वेश्चन नंबर 9 12x square minus 7x plus 1 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ पता करो की पता करना है गुणनखंड मतलब कि फैक्टर जेडे ने असीं वो पता करने हैं सो बहुत ही वधिया क्वेश्चन है ज़्यादातर साडे कोल जेडे 8th स्टैंडर्ड तो शुरू हो जाता है 8th 9th 10th सो अगली क्लास जिन्ना भी असीं पढ़ना है कितना साडे कोल जिहड़ी चीज़ है जिहदी वरती जाती रहती है सो गुणनखंड बनाने लगे किन्हां गल्लां दा ध्यान रखना है आओ देखते हैं सब तो पहला असीं करदे हां साडे कोल देखो कि इहदे जिहड़े पद ने साडे कोल किन्ने फैक्टर जां गल करिए किन्ने आ साडे कोल 1 2 ते 3 व्यंजक दिते हुए साडे कोल आ गया 12x स्क्वायर फिर साडे कोल आ गया किन्ने ने 3 पद ने ना साडे कोल पहले पद नूं असीं सॉरी पहला पूरा लिख लेंगे असीं हाँ फिर साडे कोल आ गया पहले पद नूं असीं इस तरह ही लिख लेना है क्लीयर फिर जो भी ये साइन दिता है उस साइन नूं असीं इत्थे लिख लिया क्लीयर फिर एक ब्रैकेट लगानी है थोड़ा जिहा इन्नी जगह छड्ड लैनी है कि फिर लास्ट वाला फैक्टर जिहड़ा तीसरा होंदा है वो इस तरह ही रखना है कहण दा भाव की है कि गुणनखंड नॉर्मली असीं जदों कदों बनाने जदों साडे कोल दो घाती समीकरण दित्ती होवे दो घाती बहुपद दित्ती है ना उस समय साडे कोल गुणनखंड जिहड़े बनणगे पहले ने इस तरह लिखिया 2 घात 2 नूं इस तरह लिख लिया ते अचल भी इस तरह लिख लिया देखो अचल वाला पद असीं इस तरह लिख लिया ते घात 2 वाला पद इन्हां नूं असीं इस तरह ही लिखना है पहला ते लास्ट दे विच हुण रह गया जिथे घात 1 है इत्थे साडे कोल आना है घात 1 वाला फैक्टर ठीक है जो साडे कोल 7x है हुण 7x नूं की करना है जी 7x नूं दो भागां दे विच तोड़ना है ठीक है दो भागां नूं च तोड़ के असीं उन्हां नूं जोड़ना है ते 7x बनाना है देखो 7x किदां बनूगा 4x जमा 3x 7 बन गया ना होर किस तरह बन सकदा है 5x जमा 2x प्लस करेंगे ना साडे कोल आ जाएगा फिर 6x जमा 1x सारे साडे को 7x बना रहे हैं ठीक है 7x का साडे को तीन जेडे केस बन गए जिन्हां नाल बनदा है दूसरी चीज की देखनी है कि घात 2 वाला जिहड़ा साडे को कोएफिशिएंट दिता होया है उसका गुणांक दिता होया है ते अचल दिता होया ये साडे को की है घात 2 नाल 12 दिता होया ते अचल की है 1 इन्हां दोवां नूं गुणा कर लो इन्हां दी गुणा कितनी आंदी साडे को 12 आउंदी है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6 एकम ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6 एकम 6 ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5 ਦੂਣੀ 10 ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ 10 ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ 6 ਆਈ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀ ਗਈ 4 ਦੀ 12 ठीक है ਇਹਦਾ मतलब कि साडे को आ गया 4x जमा 3x इत्थे ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 4x plus 3x क्लियर ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 12x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇਗੇ नहीं चेंज होंगे हो गया माइनस 4x माइनस 10x प्लस 1 क्लियर इस
इस तो बाद की आता साडे को इसनों असीं 2 2 दे सैट जिहड़ा कि बना लेना, पहले 2 अलग हो गए, अगले 2 जिहड़े अलग करते असीं। इन्हां दे जो 12x स्क्वायर ते -4x की गल करिए तो साझा की आंदा साडे को, देखो x स्क्वायर दिता है, x दिता है, छोटी घात साझी आ गई। हुण 12 किस तरह बनता है, 12 बराबर आएगा 4 × 12 ते 4 जिहड़ा है वो साडे कोल 4 एकम 4, मतलब कि दोवां की आ गया 4 साझा, एक आ गया 4। 4 असीं कॉमन लैंदे हां, 4 3 ज़ा 12। हुण देखो इत्थे जो कॉमन आया उहनूं इन्हां गुणा करो, जां इहनूं भाग कर लो जां गुणा च बोल के देख लो। 4 × 3 12, इत्थे बच गया 3, x 1 है, इत्थे किन्ने 2, 1x इत्थे साडे कोल बच गया। हुण 4x इत्थे है, 4x कॉमन आ गया, जिहड़ी चीज़ साडे कोल पई सी वो सारी दी सारी असीं उस जगह तो हटा लई, उत्थे की बचिया कुछ नहीं ना बचिया, कुछ भी नहीं। जो बचा तो मतलब साडे को उत्थे की रह गया 1। ध्यान रखना कि जिहड़ा फैक्टर असीं कॉमन कढदे हां, जेकर वही फैक्टर साडे को पिया है तो उत्थे साडे को 1 बच जाता है। पहला तो साडे कोल ये हो गया, फिर देखो माइनस। हुण एक गल दा ध्यान रखना है कि असीं दूसरे फैक्टर चों कुछ कॉमन कढना है तो इधर साडे को कुछ भी आवेगा जो भी ब्रैकेट विच। हुण ये जो ब्रैकेट है उही चीज़ साडे को इस ब्रैकेट दे विच आउणी चाहिदी है। क्लीयर, इस चीज़ नूं सिर्फ असीं एज इट इज इत्थे इस तरह ही फिट कर दित्ता, 3x - 1 लिखता ना उत्थे। हुण देखो साडे को इत्थे की है माइनस, इत्थे ही माइनस लिखता, पर इत्थे की सी प्लस, इत्थे की सी माइनस, असीं इत्थे माइनस कॉमन कढिया। जो माइनस कॉमन करते हैं ध्यान देखो 3x - 1, इसकी ब्रैकेट हटावांगे तो साडे को बनेगा -3x + 1। ये चीज़ बनेगी जो साडे को पई है -3x + 1। क्लीयर, इत्थे साडे को माइनस कॉमन करते साडे को इत्थे माइनस हो जाता है, जो है जिहड़ी चीज़ सी इस तरह ही आ गई। पर इत्थे साझा की आया, सारा फिट तो उस तरह रह गया, इत्थे भी वही चीज़ पई सी। जो कुछ भी साझा ना दिखे सानू इस तरह, ठीक है, तो साडे को कॉमन जिहड़ा होएगा 1 होएगा। क्लीयर, हुण साडे को क्या आंदा सारे दी लाइन जो साडे को लिखी है इस देखो हुण एक फैक्टर ये हो जाता साडे को 1 ही हो गया, दोवां च साझा की पै गया साडे को 3x - 1, ठीक है, ब्रैकेट रह गया 4x - 1। देखो इत्थों 3x - 1 बाहर लिख लिया, इत्थों 3x - 1 हटावांगे तो साडे को बच जाएगा 4x, इत्थों हटाओगे तो साडे को बच जाएगा 1 बच जाएगा। क्लीयर, होर सिंपल कहना होवे कि साडे कोल जो 2 ब्रैकेट्स आ गई, एक बार उन्होंने लिख लो तो ब्रैकेट्स को हटा दो, उठा दो, चक दो, मतलब इतों खत्म कर दो, बाकी बच जाएगा 4x - 1। इस तरह साडे को आ गया। इन्होंने असीं की करना है 3x - 1 बराबर 0 कर लो, इस तरह ही 4x - 1 बराबर 0 कर लो। वैसे ये जो आए हैं साडे को इसके जिहड़े फैक्टर आ सॉरी गुणनखंड आ जाते हैं। इस तो बाद एक स्टैप होर है, जेकर असीं फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है या 0 पता करनी है, ठीक है, इत्थे लिख लेने 0 पता करन लई। ये स्टैप जिहड़ा है 0 पता करने लई है कि असीं दोवें फैक्टर जिहड़े आए हैं उन्हां नूं 0 बराबर कर लिया। ये साडे को आ गया 3x = 1, -1 उधर प्लस हो जाएगा, ये आ गया x = 1/3। इस तरह ही 4x = 1, x बराबर आ जाएगा साडे को 1/4, जिहड़ा साडे कोल आंसर जिहड़ा कि वो आ जाता है।